Okay, we will start with example 7.3. We'll start with numericals today. In 7.3, you have been said plane wavefront of light of wavelength 5500 angstrom. एंगस्ट्रॉम को डायरेक्टली कन्वर्ट करके मैं मीटर में लिख रहा हूँ. इट्स इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स इन अ स्क्रीन perpendicular to the direction of light rays. If the total separation of 10 bright fringes, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसी भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में ये बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ. यहाँ पे बोला है टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब आपको दिया है 10 टाइम्स ऑफ x, 10 times of fringe width is equal to 2 meter on a screen, 2 meter away. On a screen 2 meter away मतलब distance between slits and screen is 2 meter, and this 10 times of fringe width distance is 2 centimeter. ऐसा आपको दिया है. This is what you have been given. 10 fringe width equal to 2 centimeter, distance between slits and the screen is 2 meter. Find the distance between the slits. So you are supposed to find out what is small d. Okay, what formulas we will be using? Easy है. We know already for fringe width lambda d by d हम लोग small use करते हैं. So fringe width happens to be lambda d by small d. तो इतना ही आपको पता होना चाहिए. It is sufficient to solve this question. So therefore given condition is 10 times of fringe width equal to 2 centimeter. 2 centimeter को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 2 into 10 power minus 2 मीटर हो जाएगा ये. So 10 times of fringe width is this, right? हमको small d चाहिए था, तो small d is equal to 10 lambda d upon 2 into 10 power minus 2. So small d is equal to 10 times of lambda. Lambda is 55 into 10 power minus 8 into capital D is 2, right? Upon 2 into 10 power minus 2. 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 पर माइनस 2 ऊपर जाएगा, प्लस 2 होगा, 10 पर माइनस 8 and 10 पर प्लस 3 is nothing but 55 into 10 power minus 5 minus 5. This is in meter. So if you have your answer, but if you want to write down in millimeter, 0.55 millimeter, because 10 power minus 2 adjust किया है सिर्फ वहाँ पे. So you can write it this way if you want. 55 into 10 power minus 2 into 10 power minus 3, या तो ऐसा कर सकते हो. So this will be equal to, आपके ऊपर है, how do you want to write it down? If you want to write it down in terms of millimeter or in terms of centimeter, so 0.55 अगर आप लिखते हो तो मिलीमीटर में आता है, सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.055 सेंटीमीटर में आएगा. दिस इज द distance between the two slits. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. You have been given few parameters, आपको फाइंड करना है स्मॉल d. फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या एग्जैक्टली बोला है? द टोटल सेपरेशन ऑफ द 10 ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब 10 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ आपको दिया है. दैट इज व्हाट यू हैव बीन गिवन, और आपको उसमें से स्मॉल d फाइंड करना है. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so in 7.4, in a Young's double slit experiment, the difference in optical path lengths, ऑप्टिकल पाथ लेंथ मतलब बेसिकली पार्ट डिफरेंस और कुछ नहीं है. डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ मतलब पार्ट डिफरेंस होता है बिटवीन द रे स्टार्टिंग फ्रॉम टू स्लिट्स S1 and S2 रीचिंग पॉइंट A ऑन अ स्क्रीन इज. आपको याद होना चाहिए हमने वो इंटरफेरेंस पैटर्न में S1P और S2P ऐसा निकाला था, बिकॉज द रेज रीचिंग फ्रॉम S1 and S2 वे आर मीटिंग एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे अभी आपको बोला है
the two rays from the two slit S1 and S2 reaching at point A on the screen is, मतलब जो पार्ट डिफरेंस आपको दिया है तो मैं बोलूंगा डेल्टा, पार्ट डिफरेंस डेल्टा से डिनोट किया था हम लोगों ने, डेल्टा of the rays reaching at point A is 0.0075 mm and reaching another point P. तो अभी instead of one point they are taking two different points on the screen. तो दूसरा जो पॉइंट है B पॉइंट, उस पे जो ये S1 और S2 स्लिट से जो रेज आ रहे हैं, the part difference between that is 0.0015 mm. How many bright and dark fringes are observed between A and B? If the wavelength of light is 6000 angstrom, मतलब 6 into 10 power minus 7 meter. How many bright and dark? और एक important word है यहाँ पे, इन्होंने see if you don't read this word on the other side of the screen, on the other side of the central fringe, मतलब A point जो है वो central fringe से अगर ऊपर की तरफ है तो B opposite side में है. If you remember, ऐसा पैटर्न आता है हमारे पास, सपोज ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, फिर आपके पास एक डार्क फ्रिंज है, समथिंग लाइक दिस, नीचे भी ऊपर भी, फिर आपके पास वापस ब्राइट फ्रिंज है, एंड अगेन सो ऑन सो फोर्थ. तो व्हाट दे आर सेइंग इज पॉइंट ए इफ इट इज हियर, लेट अस से पॉइंट बी इज ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों? अगर दोनों पॉइंट सेम साइड पे होते तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व बिटवीन ए एंड बी, हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क. तो अगर मैं डिस्टेंस ये मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस एक्स ए है और ये डिस्टेंस एक्स बी है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, तो हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. Okay, so how to solve this question? Simple. First of all, आपको तो ये समझना है कि what you are supposed to find. Okay, number of dark fringes आपको पूछा है, तो let me say that it is n. Okay, number of fringes basically, how many bright and dark fringes. So where n is total number of fringes. What formula we may need to solve this question? कौन कौन से फॉर्मूला हमको लग सकता है? देखो, जब पार्ट डिफरेंस की बात हो रही है, इफ यू रिमेंबर पार्ट डिफरेंस हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी, स्मॉल डी और एक्स, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रिंज, सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया था. इफ यू रिमेंबर, दिस वाज एक्स डी बाय कैपिटल डी. पार्ट डिफरेंस was given by this particular formula xd by capital D. अगर आपको याद होगा, हमने एक स्क्रीन लिया था, यहाँ पे दो स्लिट्स थे S1 S2, सम पॉइंट P पे रे पहुंच रहा था. ओके, तो पार्ट डिफरेंस मतलब S2P माइनस S1P हमने ये डिराइव किया था, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको बोला था हमने M1, यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको बोला था M2. ये सेंटर था, सेंटर से P पॉइंट x डिस्टेंस पे है, ये दोनों का डिस्टेंस स्मॉल d था. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था हमने बोला था ये पॉइंट M है, ये पॉइंट O है, दिस डिस्टेंस वाज d/2, दिस डिस्टेंस वाज d/2. तो बाय सॉल्विंग we have found out what was part difference between the two rays in terms of x, d and capital D. So you have to know this formula. Okay, that was x d by capital D. हमको जरूरत पड़ेगी इसकी. We are going to need this thing, right? We need this thing where x is the distance from the center. X is the distance from the center. Okay, so or you may write this formula as x is part difference d by small d. Okay, good, right? So this is what we need mostly. Again, question को अच्छे से पढ़ना है. Young's double slit experiment
the difference in the optical path lengths between rays coming from S1 and S2 and reaching point A is some value 0.0075 mm, and another point on the other side of the central fringe is 0.0015 mm. पार्ट डिफरेंस दिया है, मतलब आपको पूछा है हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे यू आर सपोज टू फाइंड आउट सेंटर से वो ए पॉइंट कितना दूर है, राइट? You just have to measure what is the distance of that point from the center. So I can write this. Okay, good. But the question here is, do we know what is d by d? No, we don't know, क्योंकि हमको ना कैपिटल डी दिया है ना हमको स्मॉल डी दिया है। तो anyways I can have x a lambda a in terms of, मैं मीटर लिख देता हूँ because mm में है तो mm में लिखो, but later on you will have to anyways convert, तो ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे लिखते हैं 0.0075 d by d. Also what is xb? What is xb? lambda b d by small d, मतलब मुझे xb भी मिल गया. What is the distance of b point on the other side of the central fringe? That is 0.00, of course this will have to be in mm, 0.0015 m d by d mm. So the distance between point A and point B is thus the distance between points A and B is xa plus xb is equal to, क्योंकि हमको I'll draw it here, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको समझने के लिए. अगर ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, अगर ये एक्स ए डिस्टेंस है एंड इफ दिस इज एक्स बी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से मेजर कर रहा हूँ, राइट? तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विच इज एक्स ए प्लस एक्स बी, राइट? इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, मैं बताऊंगा. अभी एक्स ए और एक्स बी को आप ऐड कर लो, 0.0075 प्लस 0.0015, कैपिटल डी व स्मॉल डी दोनों में है और ये mm में है डेफिनेटली, तो दिस इज इक्वल टू, सो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, यू जस्ट हैव टू ऐड दिस, ये आपका आ गया 0.009, 0.009 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी mm. Okay, good. If you have arrived up to this point, हमको पूछा नंबर ऑफ फ्रिंजेस. डू वी नो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? हमको फ्रिंज विड्थ पता है क्या? अगर हमको फ्रिंज विड्थ पता है तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? ऑलराइट, सो if it is clear up to this point, then what we know is हमको पता है एक फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, वन फ्रिंज विड्थ. सपोज if you want to imagine in terms of interference pattern, अगर ऐसा इमेजिन करना है तो what we can do is, ये मेरा, let us assume this is that pattern, ये सेंटर में ब्राइट है तो ये एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे है आपके पास, देन उसके बाद डार्क है तो यू हैव दिस डार्क फ्रिंज ओवर हियर, देन वापस दूसरी साइड पे भी डार्क होगा बिकॉज अल्टरनेट ब्राइट डार्क बनता है, तो वन डार्क फ्रिंज ओवर हियर, देन वापस से आपके पास एक ब्राइट आएगा,
दोनों साइड्स पे ब्राइट आएगा, फिर दोनों साइड्स पे डार्क आएगा, सो ऑन सो फोर्थ. So this is how the pattern is going to look like. ऐसा पैटर्न दिखने वाला है. ओके, राइट. व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस, हमको पता है फ्रिंज विड्थ क्या होता है. फ्रिंज मतलब बेसिकली एक फ्रिंज का विड्थ या फिर दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ, राइट. तो व्हाट वी नो इज वन फ्रिंज विड्थ कैपिटल X is lambda d by small d, राइट. मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1. therefore capital D by small d is nothing but x by lambda, equation number 2. Okay, then from 1 and 2, from 1 and 2, what we can write is xa plus xb is equal to 0.009. capital D by small d is x by lambda. x is fringe width, remember, by lambda. ये mm में ही चल रहा है हमारा. this is all in mm. okay, तो याद रखना this is in mm. अगर ये याद नहीं रखोगे तो there will be a problem then. तो xa plus xb is equal to 0.009 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू हमने लिखी है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर. तो mm को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁻3. ओके, अपॉन वेवलेंथ है 6 इंटू 10⁻⁷ और कैपिटल X एज इट इज, मतलब दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁷ x, 1 जा 1.5 जा. ओके, मतलब ये आ गया आपका 10⁻⁷ ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा और 1.5 इंटू 10 बचेगा तो 15x. तो ओवरऑल ऐसा है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, XA प्लस XB, वो दो पॉइंट्स के बीच में 15 फ्रिंजेस बने हैं. 15 फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है? 15 फ्रिंजेस मतलब 15 ब्राइट, क्योंकि सेंटर में ब्राइट होगा ही होगा, राइट. और देखो, सेंटर ब्राइट, फिर दो डार्क, 3 हो गए टोटल. ब्राइट हुआ 1, डार्क हुए 2, फिर 2 ब्राइट, है ना, मतलब टोटल 5 हो गए. उसमें से 3 ब्राइट, 2 डार्क, फिर 2 7, करेक्ट. तो यू हैव टू थिंक, अगर आपके पास 15 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ आया है ना, तो 15x अगर आपके पास आया है तो इसका मतलब होता है यू हैव 15 फ्रिंजेस in total including the central one. Okay, so you have basically 15 bright fringes between A and B and 14 dark fringes. This is what it means. So therefore there are 15 bright fringes including central one and 14 dark fringes between A and B. So this is how you are going to solve this question. आपको पूछा है how many bright and dark fringes are observed. आपको दिया है पाथ डिफरेंस of the rays coming from slit S1 and S2 reaching point A to be 0.0075 mm and that of B is 0.0015 mm. Wavelength of light used is given to you. फॉर्मूला मैंने बताया, क्या यूज करोगे. हमको सिर्फ ए और पॉइंट बी का सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है, और क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेंटर के अपोजिट साइड पे है तो डिस्टेंस इज एक्स ए प्लस एक्स बी. अगर सेंटर के सेम साइड पे होते तो एक्स ए माइनस एक्स बी होता, पर बिकॉज these two points are on the opposite side of center, then the distance between point A and B is XA plus XB. हमको मिल गया 0.009 d by d in mm. फिर हमने क्या किया, हमको पता है कि एक फ्रिंज का विड्थ लैम्बडा डी बाई डी, तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी मिल गया
फ्रिंज विड्थ अपॉन लैम्बडा, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ लिखा हमने, हमको मिल गया 15x, मतलब ए और बी के बीच में टोटल 15 फ्रिंजेस है, या फिर फ्रिंज विड्थ 15 है बोल सकते हो। ए और बी डिस्टेंस इज 15 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, मतलब देयर आर 15 ब्राइट फ्रिंजेस एंड 14 डार्क फ्रिंजेस। खत्म, राइट, गुड। सो इजी क्वेश्चन था। ओके, दिस क्वेश्चन आई हैव टू कीप पेंडिंग फॉर अ while, then this question also I have to keep pending for a while. Let me just see which I have to take and which I want to keep pending for a while. Right. Okay, we can actually solve 7.5. 7.6 we have to keep pending for a while. देखेंगे क्यों? Because there is something extra that I have to tell you there. An isosceles prism of refracting angle 179 degrees and refractive index 1.5 is used as a biprism by keeping it 10 centimeter away from a slit. तो आपको biprism याद होना चाहिए. Biprism was basically used to obtain coherent sources of light. Okay, instead of using two slits, हमने biprism use करके दो coherent sources बना लिए थे. Okay, the slit is illuminated by light of wavelength 500 nanometer and the screen is 90 centimeter away from the biprism. तो लैम्बडा आपको दिया है 500 नैनोमीटर, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 into 10 power minus 7 मीटर. Distance between the screen and the biprism is 90 centimeter, which is 0.9 meter. Okay, then what you're supposed to find is the location of the center of 20th dark and the path difference at this location. मतलब basically you are supposed to find out, let us say x20, क्योंकि लोकेशन पूछा है ना आपको, लोकेशन ऑफ 20th डार्क, तो x20 डार्क याद रखना, फॉर डार्क बैंड, ये इंपॉर्टेंट है. एंड द पार्ट डिफरेंस एट दिस लोकेशन, मतलब यू सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन. व्हाट मोर इज गिवन टू अस, हम लोगों को गिवन में आइसोसेलेस प्रिज्म. अभी आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब क्या, पहले वो बताना चाहिए. रिफ्रैक्टिंग एंगल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. रिफ्रैक्टिंग एंगल लेट अस डिनोट बाय, लेट अस से डेल्टा या थीटा, जो भी यूज करोगे, 179 है. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, 1.5. ऑलराइट, so this is what you should know. Then okay, so to solve this question what you need to know is you have to go through what is prism formula, you have to go through what is the thin prism, and you have to check how do you get this particular equation. I mean, we can directly use this here. मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रिज्म फॉर्मूला से आया, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, राइट, सो ऑन सो फोर्थ. बट आई वुड वांट यू टू गो थ्रू इट. जब तक आप इस पे देखोगे नहीं तब तक हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, राइट. So you have around 23 hours to go through this simple thing, and then we will continue with this question again later. So 7.5, 7.6 I have to keep pending for a while, not much, क्योंकि मुझे एक टॉपिक शॉर्ट में बताना है आपको, what is optical path. वो होने के बाद मैं करवाऊंगा ये. Then 7.7 is very simple question. There's nothing over here. A telescope has an objective of diameter 2.5 meter. ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली
the diameter of objective lens. Okay, and that diameter is given to you, it is 2.5 मीटर, और I if I remember correctly, हम लोगों ने diameter को we have denoted by aperture, मतलब जो था by a, 2.5 मीटर है. What is the angular resolution when it observes at 5500 angstrom? You are supposed to find out angular resolution, and if you remember the formula, हमने उसको d theta से डिनोट किया था angular resolution. Formula you must know for a circular aperture, d theta turns out to be 1.22 lambda by a. 1.22 lambda by a is the formula for angular separation. हम लोगों ने पहले रेलिक क्राइटेरिया देखा था क्या होता है, उसमें जस्ट रिजॉल्ट क्या होता है, राइट? जस्ट रिजॉल्ट मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सो दैट their image formed is seen separately, मतलब दो डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखने वाले हैं हमको, दो सेपरेट डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखने वाले हैं, इसको बोलते थे जस्ट रिजॉल्ट रेलिक क्राइटेरिया. तो जो डिस्टेंस था उसको बोलते थे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. ओके, राइट. वो माइक्रोस्कोप के केस में था, क्योंकि माइक्रोस्कोप के केस में दो पॉइंट सोर्सेस और ऑब्जेक्टिव लेंस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. बट व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग थ्रू टेलीस्कोप, इफ यू रिमेंबर, एक लेंस था हमारे पास, हमने यहाँ से ऐसा रेज ऑफ लाइट बताया था, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट सोर्सेस. हमने बोला था दिस इज डी थीटा, द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन फॉर विच यू हैव टू सेपरेट डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब यू हैव टू डिफरेंट इमेजेस, दैट वाज कॉल्ड एज एंगुलर रेजोल्यूशन. तो आपको एंगुलर रेजोल्यूशन पूछा है, फॉर्मूला हमारे पास 1.22 लैम्बडा बाय ए था. तो दैट्स इट. आपको पता है डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय ए. तो 1.22 lambda is 55 into 10 power minus 8 and a is 2.5. You just have to solve this. That's it. तो solve करना है 2.5, 55, 1.22, 1.22 into 55 upon 2.5 करोगे तो 10 power minus 8 को मैं लिखता हूँ temporary and we'll keep it as it is. That is 10 by 4. 4 ऊपर गया, 55 4 था 210 to 1.22 by 10. 10 by 4, 10 ऊपर गया, 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा, 26 ऐसा कुछ आएगा ये. तो 2.684 इंटू 10 पावर माइनस 7 रेडियंस. दिस शुड बी द एंगुलर सेपरेशन और एंगुलर रेजोल्यूशन बोल सकते हो. सिंपल. एंगुलर रेजोल्यूशन मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोला है, बट एंगुलर क्योंकि हमने टेलीस्कोप के केस में भी मेजर एंगल बिटवीन टू पॉइंट सोर्सेज बिकॉज दीस टू पॉइंट सोर्सेज आर फार अवे. दो स्टार है, हमसे बहुत दूर है, तो हम लोग उन दो स्टार का फिजिकल डिस्टेंस मेजर नहीं करते, हम लोग एंगुलर सेपरेशन मेजर करते हैं, राइट? सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, what is the minimum distance between two objects which can be resolved by a microscope having a visual angle of 30 degree when light of wavelength lambda 5500 nanometer is used, right? तो ये भी इजी है, दिस इज आल्सो इजी. जो एंगल दिया है उसको हम लोग मान लेते हैं बीटा या थीटा या अल्फा, जो भी डिनोट करो, दैट इज इजी, राइट? what you are supposed to find is minimum distance मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा है आपको, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? इफ यू रिमेंबर, फॉर अ माइक्रोस्कोप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर आपको याद होगा तो d इज इक्वल टू
1.22 लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू साइन अल्फा, ऐसा मैंने लिखा था, वेयर दिस म्यू साइन अल्फा वाज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर, अगर याद होगा तो, राइट। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, ओके, व्हाट वाज अल्फा बाय द वे, इफ यू रिमेम्बर अल्फा क्या था, हमारे पास ऐसा एक लेंस है, दो पॉइंट सोर्सेस थे ए और बी, उसके दो सेपरेट इमेज बने थे, ए डैश एंड बी डैश। ये जो ए है, this angle here was alpha, this was alpha, so total angle subtended by a onto the aperture was 2 alpha। तो ये अल्फा मतलब टोटल एंगल जो एक पॉइंट सोर्स लेंस पे बनाता है, दैट इज 2 अल्फा, उसका हाफ था अल्फा, राइट। हमें बोला है विजुअल एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो कि ये विजुअल एंगल और ये जो अल्फा हम लोग बोल रहे हैं, आर दीज टू सेम थिंग्स और टू डिफरेंट थिंग्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज दिस, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है दैट इज फॉर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ओके। मिनिमम डिस्टेंस की जब आप बात करते हो, जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो दिस फॉर्मूला will be modified to d minimum equal to 1.22 lambda upon 2 mu tan of beta, okay, okay। The task for you for today is beta और ये alpha, are these two same things or the different things, that is the first thing that you have to check। हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना, और अल्फा क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है मैंने अभी बताया है, मैंने थ्योरी में बताया था। योर टास्क विल बी टू वेरीफाई इफ दिस बीटा और दिस अल्फा दे आर सेम और नॉट, फर्स्ट थिंग, मतलब विजुअल एंगल और ये अल्फा सेम है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे विजुअल एंगल बोला है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेम है अगर, तो ऊपर साइन अल्फा क्यू, नीचे टैन बीटा क्यू, तो यहाँ पे भी टैन की जगह पे साइन बीटा होना चाहिए था। What this word minimum has to do between sin and tan, that is second thing that you have to check, right? Okay, तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 1.22 लैम्बडा बाय 2 is 0.61 लैम्बडा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज 1, क्यों मैंने बताया था, बहुत बार हम लोग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में एक ऑयल भर देते हैं, यहाँ पे ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्लियर, बहुत सिंपल है ये। tan of beta, beta is 30 degree, you should know what is tan 30, what is value of tan 30, sin 30 by cos 30, what is sin 30, you should know what is sin cos 30 भी पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आपको tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो if you substitute for tan 30 and if you substitute for this particular value of lambda 5 into 10 power minus 7, okay, पता होना चाहिए, tan 30 पता होना चाहिए, sin 30 is half, tan cos 30 is root 3 by 2, तो 1 by root 3, 1 by root 3 की वैल्यू you should know, so you should know what is this tan 30 overall, या फिर आपको टेबल से मिल जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये सब सॉल्व करने के बाद you will get around 5.28 into 10 power minus 7 meter, this is the minimum limit of resolution, okay। उन्होंने पूछा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी रिजॉल्व बाय माइक्रोस्कोप, मतलब यू आर वी आर आस्किंग यू व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ओके। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू sin अल्फा डिराइव करके रखा था, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल और द मीडियम और द लिक्विड और द फ्लूइड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, मतलब एयर है, एयर है मतलब म्यू की वैल्यू 1 है, 1.22 by 2 is 0.61, ऐसा लिख दिया। सिर्फ ये साइन अल्फा और ये टैन बीटा ये कंपेयर करना है, यू हैव टू नो
if alpha and this visual angle are the same or not. ये कब होगा? When you read about microscope and telescope and which was supposed to be covered in your 11th plus 1 level, right? Which was supposed to be a हुआ होगा, ये definitely हुआ होगा, right? You have to go through it. अगर 11th का मान लेने बैठा तो 12th खत्म नहीं होगा हमारा. So basically that's why you have to do it. So after solving you get this answer, easy है. Next question, 15th. A double slit arrangement produces interference fringes for sodium light. Wavelength दिया है 589 nanometer that are 0.20 degree apart. मतलब angular separation आपको दिया है. And if you remember in one of the lectures हम लोगों ने interference और diffraction pattern दोनों में ही हमने in terms of angular separation भी देखा था. Fringe width देखा था, distance होता है वो, फिर उसको angle में भी हमने convert किया था. मैंने आपको बताया था सिर्फ capital D का वो difference है. In angular separation capital D is missing. मैंने आपको बताया था ये, right? What is the angular fringe separation? Okay, if the entire arrangement is immersed in water. मैंने अगर पूरे arrangement को water में डाल दिया तो what will be the difference? What will be the angular fringe separation, right? So it has something to do with again optical path which I have not taken. So ये वापस कल के इसमें जाएगा, tomorrow's lecture, because I have to teach you some basic things and then I will take. 16th, in a double slit arrangement, the slits are separated by a distance of 100 times the wavelength of light passing through the slits. Yes, so इसमें हमको कुछ नया नहीं लगने वाला है. We can solve this question with whatever we know so far. Okay, given in a double slit arrangement, the slits are separated. Slits are separated, matlab small d, by a distance equal to 100 times the wavelength of light, matlab 100 times of lambda. Okay, you have been asked to find out what is the angular separation in radian between the central maximum and the adjacent maximum. मतलब one fringe width पूछा है आपको in terms of angle. You have just been asked to find out what is one fringe width, because आपको पता है किसी भी दो fringe width के किसी भी दो ब्राइट या डार्क कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के सेंटर का डिस्टेंस होता है वन फ्रिंज विड्थ. यहाँ पे बोला है सेंट्रल मैक्सिमा और एडजेसेंट मैक्सिमा, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा. दैट मींस दे आर आस्किंग यू व्हाट इज वन फ्रिंज विड्थ, बट दे आर आस्किंग यू in terms of angle. That is the only thing they are asking you. Okay, right. Then in question number in B part, they are asking you what is the distance between these maxima on a screen. But on a screen 50 centimeter from the slit. मतलब पहले तो आपको एंगुलर पूछ दिया, फिर आपको इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पूछा है. ओके, तो इजी है. और आपको बोला है कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ दैट स्लिट्स and the screen is 50 centimeter, that is half a meter, right? Good. So this much is given to you. और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है दो चीजें. One that they have asked you is theta, because angular separation is in theta. Angular separation याद होगा आपको, मैंने theta बताया था, एंगल बनता है that is theta basically. दूसरा आपको पूछा है what is d sin theta. Okay, what is d sin theta? I'll tell you what is d sin theta later on. मैं बताऊंगा आपको. So they are asking you two different things. Let us say मैं इसको x से denote करता हूँ for the time being. Symbol doesn't matter. So instead of writing down formulas, I will just put solution and कर लेंगे. क्वेश्चन को अच्छे से समझो.
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं है ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। व्हाट इज द एंगुलर separation in radians between central maximum and the adjacent maximum? So मान लेते हैं कि दिस इज आवर डिफ्रैक्शन पैटर्न, सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, देन दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड दैट इज ब्राइट, क्योंकि पता है आपको सेंटर में ब्राइट होता है। उसके बाद दोनों साइड्स पे डार्क होता है, तो ये डार्क आ गया, डार्क बैंड आ गया, ऑन बोथ साइड होता है। तो दिस इज व्हाट दे आर गिविंग यू। ओके, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद वापस ब्राइट आएगा और दूसरा ब्राइट का सेंटर यहाँ पे है। तो आपको ये पूछा है, एक तो आपको पूछा है in terms of angle. How do you find this in terms of angle? What we know is, हमको क्या पता है? We know that, अगर आपको याद होगा, if you remember, condition for bright मतलब condition for constructive interference, अगर आपको याद होगा, in terms of path difference, if you remember, that was equal to n lambda। और अगर आपको याद होगा, ये पाथ डिफरेंस हमने पहले भी लिखा है ना पहले हम लोगों ने, अभी आज ही किया था ये। पाथ डिफरेंस वाज व्हाट इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल d, ये हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज x d by d इक्वल टू n लैम्बडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने ये कहीं तो यूज भी किया है, आज ही किया है। See over here, x small d by capital D, that was part difference, small d by capital D. So this is the part difference, right? Good. आप इसको in terms of angle भी लिख सकते हो। You can write this in terms of angular separation, and again if you want to check, I can show you, just a minute. So for nth bright fringe from the center, you can see angular position here, this particular column row. For interference pattern, Young's double slit interference pattern, angular position of nth bright fringe is what? n lambda by small d। मैंने आपको ये भी बताया था, हमको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ही यूज करना होता है, सिर्फ वहां पे कैपिटल डी हटा देना होता है अगर आपको एंगुलर पोजीशन लिखना है तो, राइट? गुड, इतना अगर आपको याद होगा, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, मैं वापस डिराइव करने से बेटर है, आई विल जस्ट से वी नो दैट एंगुलर सेपरेशन फॉर ब्राइट fringe is given by what? Is given by n lambda by small d। okay, right? therefore हमको क्या पूछा है? पहला फ्रिंज का, राइट? पहला फ्रिंज का मतलब थीटा, तो ये थीटा इज इक्वल टू है थीटा n। ओके, therefore थीटा 1, क्योंकि हमको पहले ब्राइट बोला ना, फर्स्ट एडजेसेंट मैक्सिमम,
सेंटर के बाद एडजेसेंट मैक्सिमम फर्स्ट ही होता है, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, 10th नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू 1 मतलब लैम्बडा बाय स्मॉल डी हमको करना था, राइट, लैम्बडा बाय स्मॉल डी को करना था। गुड, यस। तो थीटा 1 इक्वल टू व्हाट इज लैम्बडा बाय द वे, 100 टाइम्स ऑफ, या फिर स्मॉल डी क्या है, 100 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। कैंसल कैंसल, मतलब 10 पावर माइनस 2 रेडियन आ गया आंसर, मतलब 0.01 रेडियन आ गया आंसर, राइट। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इज देयर एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर? नो, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नहीं है, राइट। सिर्फ आपको वो टेबल याद होना चाहिए जो इसलिए मैंने लिया था लास्ट आपके कुछ लेक्चर में, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को कंपेयर किया था। एंगुलर सेपरेशन ऑफ nth ब्राइट इज n लैम्बडा बाय d, इतना पता होना चाहिए था, दैट्स इट। एक पार्ट खत्म, बी पार्ट। What is the distance between these maxima on a screen 50 centimeter away from the slit? मतलब basically what they are asking you and what we know is, हमको पता है फ्रिंज विड्थ कितना है, फ्रिंज विड्थ we know that ना, फ्रिंज विड्थ क्या है, lambda d by d, करेक्ट। और if you remember सेंटर से पहला एडजेसेंट मैक्सिमा मतलब एक फ्रिंज होता है कैपिटल एक्स, ऊपर दिखाया मैंने, सेंट्रल के सेंटर से पहला ब्राइट उसका सेंटर, दैट इज वन फ्रिंज विड्थ, तो बस लैम्बडा डी बाई डी है, लैम्बडा डी बाई डी है, तो ये तो कर ही सकते हो ना। व्हाट इज लैम्बडा अगेन, व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा दिया नहीं, ठीक है रखो। व्हाट इज डी, 0.5 मीटर। व्हाट इज स्मॉल डी, 100 टाइम्स ऑफ दिस, खत्म, राइट। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, है ना, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ गया, दैट इज बेसिकली 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो मिल गया स्क्रीन पे इन दोनों का डिस्टेंस, और एंगल के टर्म्स में भी लिख लिया हमने। तो क्वेश्चन वाज नथिंग, whole idea here is to know formulas, और इसलिए you have to go through that table again, okay। So remaining we will do in the next session,